کھچی نے تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ٹیکسلا میوزیم میں ہونے والی ویساکھ ڈے کی تقریب میں دھرمر اجیکا سٹوپا پر مذہبی رسومات ادا کی گئیں اور دنیا بھر سے آئے ہوئے بھکشکوں نے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ سفید کبوتر فضا میں چھوڑ کر عالمی امن کا پیغام دیا گیا اور بدھ مت ورثے کے فروغ کے لیے خصوصی سیشنز کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس تقریب میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں اور معزز مہمانوں نے شرکت کی اور امن کی گھنٹی بھی بجائے گئے۔ سری لنکا، تھائی لینڈ، نیپال، میانمار، ویتنام کے مندوبین بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ On the occasion of the Day of Vaisak, the Day of Vaisak is very important for the Buddhist peoples. In principle, it's a day that the Lord Buddha born, enlightenment, and passing away or death. But it's one of the most important days as well, and United Nations has announced its International Vaisak Day. And for this event, today event, because we know that Taxila, which is the city, which is the Buddhist monastery, has a big community of the Buddhist monastery here. So on this important occasion of the Vaisak, we should have this kind of commemorations on the ceremony here. That's why the ambassador and families of 5 Buddhist countries, which is Thailand, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, and Myanmar, we come together to do celebration on Vaisak Day here. Well, Vaisak is a great commemorative day for the world. Although we regard it as a Buddha's birth, enlightenment, and passing away of the Buddha Day, but it is internationally recognized by the United Nations as a very global significance day. And when we talk about the Buddha, Buddha is just awakening. So it's a day of awakening. So we are here by the help of all these Buddhist missions who is here in Pakistan, together with the sponsorship of the Punjab government and the federal government here. It has been doing such a tremendous good job showing that how this important day, which is United Nations has recognized, in that recognition there is a big role played by the government of Pakistan. Pakistan government बहुत मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से बहुत मेहनत कर रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत यानी कि तेज़ी से और बड़ा सीरियसली ओनरशिप लेने लगी हुई है। ये इवेंट जो अभी ऑर्गेनाइज हुआ है, इन ऑल ऑनेस्टी ये एक्चुअली 5 एम्बेसडर्स ने इनिशिएटिव लिया था ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें लीड हैं नेपाल की एम्बेसडर एक्सेलेंसी रीता, उसके बाद श्रीलंका के एम्बेसडर, वियतनाम के एम्बेसडर, थाईलैंड और म्यांमार। इन्होंने शुरू किया कि इसको, मैं भी उसी कमेटी में था, इन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ हाथ बढ़ाएं। और फिर ऑफ कोर्स मैंने कहा कि आप पंजाब गवर्नमेंट, ये उनका इलाका है, उनका एरिया, तो फिर पंजाब गवर्नमेंट ने जब उनको पता लगा तो वो बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हर चीज़ सेक्रेटरी सुकरात, मिनिस्टर औरंगज़ेब बहुत मेहनत कर रहे हैं इनको दोबारा इस इवेंट को रिवाइटलाइज़ किया और बहुत कुछ करने लगे हुए हैं। पाकिस्तान ये पूरा खिता जो है गंधारा का, ये यहाँ से शुरू होता है, नॉर्दर्न एरिया चाइना तक जाता है, सारा सवात इसके अंडर आता है, फिर ये अफ़गानिस्तान में जाता है और उससे आगे ये चला जाता है सेंट्रल एशिया में। और इसकी रेलेवेंस ये आप समझ लें कि बुद्धिस्ट के लिए मक्का और मदीना जो है बुद्धिज़्म का, वो यहाँ पे है। और हमारी कोशिश यही हो रही है हुकूमत के साथ मिल के कि ये एक पोटेंशली $30 बिलियन का टूरिज़म सेक्टर बनता है जो रिलीजियस टूरिज़म होगी। और उसी के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई है कि अब इसको किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जाए। शायद 10 साल लगे, लेकिन कोशिश ये होगी कि 500 मिलियन बुद्धिस्ट
जो है दुनिया में, उनमें से अगर 1% भी पाकिस्तान आने लग जाएं तो 5 मिलियन लोग पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। हम लोगों ने पिछली साल भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे ऐसा ही इवेंट करने का सोच बनाया था। तो इस बार हम 5 मुल्क इधर आ गए हैं, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका एंड नेपाल। तो 2 मॉन्क भी आए हैं थाईलैंड से और श्रीलंका से, और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। ये ग्रैंड वे में प्रोग्राम हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। तो आज का इवेंट ये विसाख डे है। इस दिन ही लॉर्ड बुद्धा जो है ये उनका जन्मदिन है। इसी दिन उनको निर्वाण हासिल हुआ और इसी दिन उनकी वफ़ात हुई। तो जो बुद्धिज़्म के मानने वाले हैं उनके लिए इस दिन की बड़ी अहमियत है। तो पहले ये इवेंट धर्माराजी का स्टूपा में होता था, जहाँ बुद्धा के रेलिक्स दफन हैं, और ये एक छोटे लेवल पे होता था। इस दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा के विजन और ख़ास हदायत मैडम मरीम औरंगज़ेब सीनियर मिनिस्टर पे के और सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी और डीजी आर्कियोलॉजी, इन्होंने ये कोशिश की कि गवर्नमेंट के लेवल पे इस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाए, और उसी सिलसिले में आज हम सारे इकट्ठे हैं। इस सारे इवेंट्स को पंजाब गवर्नमेंट ने फ़ंड किया और ऑर्गेनाइज़ किया है। पहले तकरीब जो है वो धर्माराजी का स्टूपा पे हुई। इसमें 5 बुद्धिस्ट कंट्री जो हैं उनके मॉन्क्स और उनके एम्बेसडर्स आए हैं। दुनिया के 2 बड़े मज़ाहिब की पैदाइश की जगह हैं और उनके फूलने फलने की जगह है, जिसमें सिखिज़म और बुद्धिज़्म है। तो मौजूदा हुकूमत ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वफाक में और मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में पंजाब में ये पूरा तहैया किया है कि वो पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान के हेरिटेज को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व भी करेंगे और पूरी दुनिया में इसको रोशना भी कराएंगे। हमारा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और मरीम औरंगज़ेब साहबा ने मैग्निफिसेंट पंजाब जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये ऑल इंक्लूसिव प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम पंजाब के विरसे को संभालने की बात कर रहे हैं, उसकी कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसकी रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। आप ये मेरे पीछे जितने बोर्ड्स लगे हैं देखिए, यहाँ पे मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है, गंधारा सिविलाइजेशन की भी बात है, वॉल सिटी की भी बात है, इसके अंदर जो दरगाहें उनकी बात है, फोर्ट्स की बात है। हम ये समझते हैं कि ये हमारा विरसा है, हमें इस विरसे को संभालना है, दुनिया को इस विरसे के साथ कनेक्ट करना और पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाना है। और आप देखिए पिछले दिनों आपने बैसाखी कवर की, हमारे सिख भाई आए, मोहब्बत समेट की गए, जब आए तो डरे सहमे हुए थे, उनको इंडियन मीडिया ने डराया था। जब वापस गए उनकी आंखों में आंसू थे और खुशी के आंसू थे, रो रहे थे कि हमारा दिल नहीं करता हम ये इतना प्यारा वतन छोड़ के जाए।